ये लोग નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કદાચ મારો પરિચય નહીં હોય, સૌથી પહેલું લેક્ચર છે. હિન્દી વિષય ભણાવું છું. RS પટેલ, રોહિતભાઈ S પટેલ. મેં એક વસ્તુ જોઈ છે કે ઘણી તમારી વિદ્યાર્થીઓ તરફની નાની મોટી ફરિયાદો આવે છે. મારું એક જ સૂચન છે, મારી વાત તમને અનુકૂળ ન આવે, ગમે નહીં તો મ્યુટ થઈને બહાર જતું રહેવાનું બોલ્યા વગર, પણ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનું ડિસ્ટર્બન્સ નથી. હું જે વાત કરું છું એને શાંતિથી સાંભળો. હવે હિન્દીની અંદર કદાચ તમે 1 થી 3 પાઠના વિડીયો મેં જુદા જુદા મોકલ્યા છે, જોયા હશે, પાઠને વાંચન કર્યો હશે, વાંચ્યો હશે. સરસ મજાનો પાઠ, 2 નંબરનો ન્યાયમૂર્તિ, એ કદાચ તમે વાંચ્યો હોય, મેં એક નાનો સરખો વિડીયો મૂક્યો હતો, એ જોયું હોય ને વાંચ્યું હોય તો એની સમજ આવી જ જાય. ત્રીજો પાઠ હતો ક્યાં નિરાશવા જાય, એની પણ સરસ રચના મેં તમને તમારી સમક્ષ એક સરસ વિડીયો એ પણ મૂક્યો. તમારે વાંચવાનો પાઠ, એ જોયા પછી પાઠ વાંચો એટલે સમજ આવી જ જાય. હવે આજથી જે લેક્ચર મારા શરૂ થયા છે એટલે હું ચોથો પાઠ, જે ચોથું કાવ્ય છે, પદ્ય છે, એની વાત હું કરવાનો છું. થોડી બાહ્ય વાત કરીને ધીમે ધીમે આપણે એના તરફ આગળ વધીશું. ચોથો પાઠ છે એનું નામ છે કર્ણ કા જીવન દર્શન. કર્ણ કા જીવન દર્શન એટલે કદાચ મહાભારતનું પાત્ર કર્ણ એ તમે જાણો જ છો, પણ સૌથી મોટી વાત, એક પ્રશ્ન, કર્ણ કઈ રીતે જાણીતો છે? તમને કદાચ ખબર હોય તો સૌથી મોટા દાનવીર તરીકે કદાચ કર્ણનું નામ શ્રેષ્ઠતા સુધી જોઈ શકીએ છીએ. એટલે આપણે કર્ણને એક દાની પુરુષ તરીકે, પરોપકારી વ્યક્તિ તરીકે આપણે જોઈ શકીએ. અહીંયા 2 મૂલ્યો સાથેનો આ કાવ્ય છે. પરોપકારની સાથે સાથે એક સાચી મિત્રતા. આ સાચી મિત્રતાના સંદર્ભમાં હવે કોની સાથે મિત્રતા મહાભારતમાં એ તમે જાણો જ છો, દુર્યોધન. એના ઉપરનો આ પાઠ છે. હવે આપણે એના તરફ આગળ વધીએ, એને જોઈએ. તમને હું થોડું સ્ક્રીન ઉપર ક્યાંક થોડી સ્લાઇડો બતાવીશ, થોડી માહિતી આપીશ. તમારે પુસ્તકની પણ કદાચ જરૂર નથી. જો કદાચ સારું અહીંયા દેખાશે તો તમે એના આધારે સર તમારો અવાજ નહીં આવતો, તો ખાલી સાંભળવાનું છે તમારે, બરાબર? કોઈ પણ પ્રકારનું તમારે પુસ્તક એની જરૂર નથી, પણ કદાચ તમને ન દેખાય તો કદાચ પુસ્તકની જરૂર પડે, બરાબર? પણ હવે જોઈએ, સીધો હાલ શરૂઆત આપણે કરીએ તો ચોથો પાઠ છે કર્ણ કા જીવન દर्शन. उसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर. रामधारी सिंह और एक दिनकर शब्द है, दिनकर यह उनका उपनाम है, साहित्यिक नाम है. उन्होंने जिस तरह से रचनाएं की है वह दिनकर के नाम से लिखी हुई है. तो यहां पर हम उनका
सबसे पहले थोड़ा सा परिचय करें। तो पहले मैं आपको एक उनका लेखक का फोटोग्राफ्स दिखाता हूं, जिसके आधार पर आप देखें कि नामधारी सिंह दिनकर यानी कौन। हमें पता भी होना चाहिए कि कैसे दिखने वाले थे, कैसे थे, हमें पता चले। बीजा नंबर નું देखो, आपके सामने है સર તમે મ્યુટ થઈ ગયા છો સર તમને મ્યુટ કરી દીધા છે था। उनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम मनरूप देवी। उनके बारे में देखें तो एक सामान्य परिवार में उनका जन्म और वह धीरे धीरे अच्छी पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में अध्यापक के रूप में उनको स्थान मिला। और उन्होंने इसके बाद साहित्य की रचनाएं की, कई रचनाएं। पर उन्होंने उनकी एक विशेषता, नामधारी सिंह दिनकर की एक विशेषता यह है कि उन्होंने जो शोषित पीड़ित ऐसे लोगों को बाहर लाने का प्रयत्न किया है। उनकी जो रचनाएं हैं ना, ज्यादातर ऐसे पात्रों को उभारने का प्रयत्न किया है कि जिसको समाज की नजर किसी की उस पर गई हुई ही नहीं है। जैसे कि आप देखें तो उर्वशी, यह एक अप्सरा थी और उसके जीवन के बारे में उन्होंने एक सुंदर सी बात लिखी हुई है। फिर एक कर्ण, रामायण का સર તમે દેખાતા નથી સર 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 તમે તમે દેખાતા દેખાતા નથી. નથી સર તમે દેખ સર તમે દેખાતા નથી સર તમે દેખાતા નથી સર તમારો અવાજ નથી આવતો. સર તમે દેખાતા નહીં उर्वशी उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, ओंकार, रसवती, कुरुक्षेत्र, ऐसे ऐसी कई रचनाएं उन्होंने लिखी हुई। उसके बारे में ज्यादातर विशेष बात करूं तो उर्वशी में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अब हमें बात करनी है कर्ण का जीवन दर्शन। तो यह जो पद्य लिया गया है वह रश्मिरथी में से लिया गया है। रश्मिरथी में, अब रश्मिरथी की बात करूं तो रश्मिरथी यानी कि सूर्य का सारथी, यह एक खंड काव्य है और इस સર તમે દેખાતા નથી સર તમે દેખાતા નથી. સર તમે બેઠા રહો ને. દેખાતા નથી ચૂપચાપ સર બેઠા તમે સર સર ફોન કરી નાખો ફોન નથી. સર તમે દેખાતા સર તમારો અવાજ નહીં આવતો कर्ण के चरित्र की सभी पक्षों का चित्रण इसमें किया गया है। अब पहले शुरू से हम बात करें तो महाभारत में कुंती का पात्र आप देख सकते हैं। उस कुंती के पात्र में हम देखें तो जब कुंती ने विवाहित नहीं थी
और उसी समय ऋषि ने उसे वरदान दिया और उस वरदान के से उन पर विश्वास नहीं था, तो उन्होंने इस वरदान का उपयोग किया और इस वरदान का उपयोग करते हुए वह जब पहली बार कौमार्य में ही उन्होंने वरदान के रूप में उसका प्रयोग किया, तो सूर्य की आराधना की और सूर्य की आराधना करने के बाद उनको एक पुत्र अवतरणित हुआ। अब लोकलाज के कारण उन्होंने इस पुत्र को नदी में बहा दिया, पर यह पुत्र उस समय एक वहां के सारथी जिसका नाम था हस्तिनापुर का सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधे के नाम से फिर पहचाना गया, तो राधा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बाद कर्ण राधे के नाम से जाना गया। तो कर्ण का जीवन हम देख सकते हैं कि वह एक सामान्य परिवार में एक उसका पालन पोषण होता है। उसने जीवन में एक प्रतिज्ञा की थी कि उसके पास जो भी है उसमें से वह सब कुछ, जब सुबह को जब सूर्य की आराधना करता है उसी समय कोई भी व्यक्ति उसके सामने आता है तो उसकी वह पूजा अर्चना करने के बाद जो भी उसके सामने आता है उसे सब कुछ देने के लिए, भले ना उसको अपना सब प्राण भी क्यों ना देना पड़े, सब कुछ देने के लिए वह तैयार हो जाते। तो ऐसे कर्ण और कर्ण के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं। मैं आपको कहूं तो परशुराम ने भी कर्ण की श्रेष्ठता की चर्चा की हुई है। ये धनुर्धारों में उस समय की बात करता हूं कि महाभारत के समय में धनुर्धारी व्यक्तियों में कर्ण का नाम अग्रस्थान पर हो सकता था, पर हम देख सकते हैं कि उनके पीछे के बाद उनको कौन सी स्थिति में से गुजरना पड़ा। तो इस तरह हमें देखने को मिलता है। अब हम काव्य की और आगे बढ़ते हैं, जिसमें तृतीय स्वर्ग की बात हमें इसमें काव्य में देखने को मिलती है। पिंकेश ने चालू कर। अब हम काव्य की और जाते हैं। इस काव्य में સર તમને કોઈ મ્યુટ કરી રહ્યા છે સર? સર તમને મ્યુટ કરી નાખ્યા। સર તમને મ્યુટ કરી નાખ સર તમને મ્યુટ કરી નાખ્યા છે કોઈએ? અવાજ નહીં આવતો। कोई विद्यार्थी म्यूट नहीं करे, बरोबर। અને ક્યાંક થોડો સામાન્ય નેટનો પ્રોબ્લેમ છે એટલે કદાચ અવાજ બંધ થઈ જાય, પણ હું થોડો અવાજ બંધ થશે ત્યારે હું બંધ થઈને ત્યાંથી જ શરૂઆત કરીશ। એટલે તમારે કોઈએ પણ એના સંદર્ભમાં બીજી કોઈ માથાકૂટમાં પડવાનું નથી, બરોબર। ચલો, तो यहाँ पर देखते हैं। तो काव्य में हम देखें तो मित्रता का अजोड़ मित्रता, यानी बात करें तो आज के समय में ऐसे मित्रों की बात करें तो कोई देखने को ही नहीं मिलता है। ऐसे मूल्य समाज में ऐसे व्यक्तित्व दिखाने वाला कर्ण जैसा पात्र आज देखने को नहीं मिलता। अब देखते हैं काव्य की कर्तव्य सदा वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। यानी हम देखें तो वैभव विलास, वैभव यानी रुपया धन संपत्ति, विलास यानी सुखोपभोग, सुख की कामना। यहां पर देखो ये तृतीय स्वर्ग में कर्ण और श्री कृष्ण के संवाद की ही बात देखने को मिलती है। हमारा जो काव्य है उसमें दो पात्रों की बात, श्री कृष्ण और कर्ण के संवाद की बात। आप जानते होंगे कि कृष्ण महाभारत का युद्ध
की घोषणा हो चुकी, तब कृष्ण कर्ण को मिलने के लिए जाते हैं। कर्ण को कहते हैं कि तुम पांडव पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, हम तुम्हें राज्य देंगे। और उस समय कर्ण कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार के धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, सुखोपभोग की जरूरत नहीं है, मुझे उसकी कोई चाहना नहीं है, मुझे अपने खुद की कोई परवाह नहीं है। बस मैं तो यही चाहता हूं, बस यही चाहता हूं, केवल यानी कि बस मैं यही इच्छा रखता हूं, यही व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे हाथ से दान होता रहे, मैं अपने हाथ से कुछ न कुछ दान करता रहूं। इसीलिए कहा है, यानी मैंने इसलिए ये दोस्तों, यानी उनको किसी भी प्रकार के राजमहल और इसी की कोई जरूरत नहीं है, धन वैभव की कुछ जरूरत नहीं है, बस मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे हाथ से, मैंने ये और भी एक चित्र दिखा है कि मेरे हाथ से निर्धन लोगों की, जो जिसकी जरूरत है, निर्धन लोगों के जरूरियातों को मैं पूर्ण करूं, उनको दान करता रहूं। इसलिए करतल से जरती रहे, करतल यानी हाथ से सदा मैं दान देता रहूं, निर्धन को बढ़ती रहे, निर्धन यानी गरीब, जो दिन दुखी है, उनको मैं कुछ न कुछ दान करता रहूं, बस मेरी यही इच्छा है। यानी कर्ण श्री कृष्ण को यह बता देता है कि मुझे ऐसी कोई भी आप लालसा देंगे तो भी मैं पांडव के साथ आने वाला नहीं। मेरी जो अजोड़ मित्रता है दुर्योधन के साथ, दुर्योधन आज विपत्ति में फंसा हुआ है, तो मैं उसका साथ देने वाला हूं। और उस साथ देने के लिए उन्होंने यही कहा कि बस आप मुझे कोई भी लालसा देंगे, कितनी भी कुछ बातें करेंगे, मुझे कोई कुछ भी चाहिए नहीं, बस मैं तो जीवन में अपनी खुद की परवाह करने वाला नहीं हूं, मैं तो अपने बाहुबल में जीने वाला हूं, बस मैं तो यह दान करता ही रहूं, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। यानी तुच्छ यानी हे केशव, केशव यानी कृष्ण, कृष्ण को कहा केशव मेरे लिए यह राज्य तुच्छ है, सामान्य है, मेरे लाले मुझे ऐसी कुछ राज्य की आप जो लालसाएं देते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक मैं आपको एक और भी प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या मनुष्य इस वैभव संपत्ति को प्राप्त करके क्या पाता है, उसे क्या मिलता है? यह धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद उसे क्या मिलता है? तो उसका उत्तर भी कर्ण देता है। कर्ण क्या कहता है कि मनुष्य वैभव को प्राप्त करके चिंता प्रभुत, यानी ज्यादा से ज्यादा चिंता उसके साथ होती है, ज्यादा चिंता बढ़ेगी। अल्पहास यानी अल्पहास यानी बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ी हंसी खुशी, हास यानी हंसी खुशी, बहुत थोड़ी हंसी खुशी, कुछ चाकचिक्य, चाकचिक्य यानी कि चमक दमक। हम देखते हैं ना कि समाज में लोग कई बार कोई एक बड़ा सा गाड़ी वाला निकलता है तो क्या समझे, कितनी अच्छी गाड़ी है, बस ये चाकचिक्य है, चमक दमक है, थोड़े समय के लिए, उससे ज्यादा होती नहीं है। यानी थोड़े समय के लिए चमक दमक, कुछ क्षण विलास, और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग, आनंद, बस इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए कहा है कि मनुष्य यही पाता है, थोड़ी चिंता, ज्यादा मात्रा में चिंताएं, थोड़ी हंसी खुशी, थोड़ी चमक दमक और कुछ सुखोपभोग, विलास, आनंद, पर वह भी यह गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाता। आई गुबानुज, એટલે तो कहा जाता है खाली हाथ आए हैं खाली हाथ
जाएंगे। यानी सब कुछ यही छोड़कर जाना है, कुछ साथ लेकर हम जाने वाले नहीं है, इसीलिए बस यही गंवाना है, यही छोड़कर जाना है, कुछ हम साथ लेकर जाने वाले नहीं। यानी इसीलिए वह किसी भी प्रकार का लोभ लालच उसमें नहीं है। उसने कृष्ण को कह दिया मुझे कोई भी चीज चाहिए नहीं, मैं तो दुर्योधन का साथ देने वाला हूं, मेरा सच्चा मित्र है, उस मित्र का साथ छोड़कर जाने वाला नहीं। आगे है, मुझसे है मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। यानी मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं ना, खुद के बारे में कर्ण अपने बारे में बताता है कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं ना, वह कभी भी धन संपत्ति कंचन सोने का भार कभी उठाते नहीं है, उसे धन सोने का कोई लोभ मोह होता नहीं है। वह तो उसके पास जितना भी धन संपत्ति है ना, जो भी सोना है रत्न है जो भी कुछ है ना, वह तो लुटाने के लिए होते हैं। लुटाने यानी कि बिखेरने के लिए, दूसरों को देने के लिए। वो तो इसीलिए कहा है कि पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। उसके पास जो भी रत्न है जो भी संपत्ति है ना, वह तो लुटा देते हैं यानी दे देते हैं, दान करते हैं, लोगों को जब भी जरूरत होती है उसको देते हैं। यानी इसीलिए कहा है कि जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कभी जग से कुछ नहीं लेते। मैंने कहा ना कि अपने आप अपने बाहुबल से किसी के आश्रय पर बैठने वाले नहीं होते हैं, अपने बाहुबल से प्राप्त करते हैं और उसे लोगों को दान में देते भी हैं। उनको किसी भी प्रकार का मोह होता नहीं है। पर इसके संदर्भ में मैं आपको एक महाभारत की बात बता दूं कि ऐसा व्यक्तित्व किस तरह, तो आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में। जब महाभारत में पता था कि कर्ण ऐसा धनुर्धर है कि अर्जुन को वही मार सकता है, और उसके पास कवच कुंडल थे, और कवच कुंडल जब तक है तब तक कर्ण की मृत्यु संभव नहीं। इसलिए इंद्र राजा ने, यानी भगवान इंद्र ने क्या किया, अर्जुन को बचाने के लिए ब्राह्मण वेश में गए, और ब्राह्मण वेश में जाकर जब कर्ण उपासना कर रहे थे, उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद निकलते, तब उनके पास भिक्षा मांगते। हेलो, भिक्षा में क्या मांगा, कवच कुंडल। कर्ण ने एक पल भी इंतजार किए बिना, उसे पता था कि मेरा कवच कुंडल यानी मेरी किसी भी तरीके से मृत्यु हो सकती है युद्ध में, तो भी उसने अपने कवच कुंडल निकाल कर दिए। उसके जन्म से उसके साथ थे, इसलिए वह निकालते वक्त उसका शरीर लोहलुहान हो गया। इंद्र ने फिर अपना रूप धरते हुए उनको अच्छा कर दिया। पर इंद्र ने कहा कि तुमने कवच कुंडल ली है तो तुम वरदान मांगो। तो सूर्य देवता ने कर्ण को पहले से बता दिया था कि तुम्हें एक शक्ति शस्त्र प्राप्त करना है, और शक्ति शस्त्र वह उसी समय मांग लेता है, क्योंकि यह शक्ति शस्त्र ऐसा था कि एक बार मारने से किसी की सामने की मृत्यु हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि शक्ति शस्त्र का उपयोग वह कहां पर करते हैं, घटोत्कच को मारने के लिए। तो यहां पर उस समय का दृश्य है कि उसने अपने जान की परवाह किए बिना भी कवच कुंडल दान में दे दिए थे। यानी इतना बड़ा दानवीर था, यानी कोई सामान्य बात नहीं थी। तो ऐसा कर्ण, ऐसा व्यक्तित्व यहां पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने बस सब कुछ अपने बाहुबल पर जितना भी प्राप्त किया उसमें से भी वह दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे है, प्रसादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वो कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों। यहां पर देखें तो इस पंक्तियों में कर्ण ने अपने खुद को गरुड़ कहा, गरुड़ मानते हैं खुद को। किस तरीके से, सारी पंक्तियों को समझेंगे। प्रासाद यानी कि राजमहल, सोने से बने हुए, सोने से लदे हुए ऐसे राजमहल।
यानी कि प्रासादों के कनकाद्र शिखर होते हैं कबूतरों के घर। यानी प्रासाद यानी सोने से बने हुए ऐसे बड़े बड़े राजमहल है ना, किसके लिए होते हैं? कबूतरों के घर होते हैं। वहां तो कबूतर रहते हैं। कबूतर ऐसे सोने के बिछाने कभी भी देखने को मिलेगा नहीं। यानी सोने के महलों में कबूतर रहते हैं, गरुड़ कभी नहीं होता। गरुड़ तो कहां पर रहता है? तो बसता हुआ कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। वह तो पहाड़ों की फटी दरारों में उसका स्थान होता है, पर्वत पहाड़ों में वह रहता है। यानी उसी तरह मैं राजमहल में रहने वाला नहीं हूं, मुझे सुखों की कोई जरूरत नहीं है, राजमहल की बात नहीं है। मैं तो एक सामान्य से ऐसे पहाड़ों में रहने वाला हूं जहां पर आंधी तूफानों का सामना कर सकूं, ऐसा। तो इसीलिए अपने खुद को गरुड़ माना है। इस पंक्ति में वह खुद को गरुड़ कहता है। आगे देखते हैं, होकर समृद्धि सुख अधीन मानव होता नित्य तपक्षीण, सत्ता किरीट मणि में आसन करते मनुष्य का तेज हर। यानी मेरे जैसे मनुष्य सुख समृद्धि के अधीन होने वाले नहीं है। मुझे सुख समृद्धि नहीं चाहिए। और जो भी व्यक्ति सुख समृद्धि में, वैभव विलास में डूबा रहता है, वह मानव का तप क्षीण हो जाता है। उसका तप क्षीण हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति राजमहलों में, हम देख सकते हैं कि उसके लिए आलीशान राजमहल होता है, सारी सुविधाएं होती है, किसी भी प्रकार के कष्ट होते नहीं है, तो ऐसे ही उसको वह जीता है। तो उसमें जीने से मनुष्य का तप हरण हो जाता है, तप क्षीण हो जाता है। सत्ता यानी मुझे ऐसे कोई पद की जरूरत नहीं है, किरीट यानी मुझे राज मुकुट की कोई जरूरत नहीं है, मणि में आसन, मणियों से बना आसन यानी सिंहासन, मुझे सिंहासन की कोई जरूरत नहीं है। करते मनुष्य का तेज हरण, यानी मनुष्य का यह सब कुछ प्राप्त करने से उसका तेज हरण हो जाता है, तेज नष्ट हो जाता है। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। मनुष्य वैभव विलास में डूबा रहता है तो उसकी लालच और भी ज्यादा बढ़ती है। एक राज्य मिला तो और ज्यादा राज्य को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य की लालसाएं ज्यादा से ज्यादा बढ़ती ही जाती रहती है। तो यही कहे, मनुष्य का जितनी भी लालसाएं बढ़ेगी उतना ही मनुष्य का तेज खत्म होता जाएगा। मनुष्य को वही सुख वैभव उसको खा जाएगा, उसमें ही वह नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यहां पर वह सुख समृद्धि में जीने के लिए तैयार नहीं है। चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश ना पिए बिना, आतप गण में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। चांदनी यानी चांदनी में जीने वाला, चांदनी यानी बहुत सुंदर बात है। पुष्प छाया में पल, पुष्प छाया में पलने वाला मनुष्य, जो पुष्प छायाओं में जो पलता है वो मनुष्य कैसा होता है? सुमधुर कोमल, उसमें कोमलता का भाव, सुमधुर बहुत सुंदर दिखने वाला, ऐसा दिखने वाला वह व्यक्ति होता है। पर वह कभी मनुष्य नहीं कहलाता। जो व्यक्ति आंधी तूफानों में, धूपों में और दुखों, विपत्तियों, मुश्किलों का सामना करता है वही पुरुष कहलाता है। इसीलिए कहा पर अमृत क्लेश पिए बिना, अमृत क्लेश पिए बिना यानी आंधी तूफानों का सामना किए बिना, आतप यानी दुख, दंड यानी झंझावात, आंधी तूफान, और आंधी तूफान और दुखों में जिए बिना वो कोई व्यक्ति पुरुष नहीं कहलाता। यानी दुखों का सामना जो करता है वही पुरुष कहलाता है, विघ्नों का सामना करता है वही पुरुष कहलाता है। पर जो व्यक्ति सुकोमल हो, सुमधुर हो, तो वह व्यक्ति
पुरुष के रूप में हो ही सकता नहीं, वह आदि तूफानों का सामना कर सकता नहीं है। यानी इसीलिए वह अपने खुद को गरुड़ कहा, वो पहाड़ों में रहने वाला, वो खुद को गरुड़ कहा और वह अपने बाहुबल पर जीने की बात की हुई है। अंत में कहा है, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। गरुड़ की ही बात यहां पर आई कि जो उड़ते जो झंझावातों में, यानी झंझावात, यहां पर हम देख सकते हैं कि आकाश में, सारा आकाश जिसका उसका शयन है, रहने वाला है, या वह ऐसा, वह आकाश में कितना ही आंधी तूफान आए ना तो भी उसमें उड़ता रहता है, उसका स्थान है। पीते हैं वारी प्रपातों, वारी यानी पानी, जल, प्रपात यानी यहां पर देखना आपने एक झरने का उदाहरण है, पहाड़ों में झरना जो निकलता है उसमें से जो पानी पीता है, यानी आपत्तियों मुश्किलों में वह जीता है। सारा आकाश अयन जिसका, सारा आकाश जिसका घर है, विषधर भुजंग भोजन जिसका, और उसका भोजन भी क्या है, विष से भरा ऐसा भुजंग यानी सांप, जिसका भोजन क्या है, सांप है। तो ऐसे विष से भरे ऐसे सांप का भोजन जिसका है, ऐसा गरुड़, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। वही फणिबंद यानी नागपाश, यानी वही नागपाश से मुक्त करा सकता है और धरती का हृदय जुड़ा सकता है, धरती के हृदय को स्थान, ऐसा उच्च स्थान दे सकता है। आपको रामायण का वो प्रसंग बता दूं, रामायण में राम और लक्ष्मण जब उस समय उनको नागपाश में बंध दिया, तो हनुमान जी ने गरुड़ को लेकर उस नागपाश में से छुड़ाया था। तो यही बात है कि नागपाश में छुड़ाने का कार्य मात्र गरुड़ ही कर सकता है। तो ऐसे धरती पर से हृदय को उच्च स्थान दिलाने का काम भी वही व्यक्ति कर सकते हैं। ऐसे परोपकारी व्यक्तित्व का वर्णन भी यहाँ पर किया है। तो कर्ण के व्यक्तित्व की बात, यानी कर्ण यहाँ पर गरुड़ के रूप में है, ऐसी बात आप बताई है। और अंतिम पंक्ति में कहा है, मैं गरुड़ हूं कृष्ण। देखो कृष्ण को कहा है मैं गरुड़ हूं, मैं पक्षी राज, पक्षियों के राजा गरुड़, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मुझे ताज नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर गरुड़ है, तो गरुड़ पक्षियों का राजा है, पर कोई ताज है, ताज, मुझे कोई ताज की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मैं राजा हूं, बस राजा है हूं, बस मुझे उसके लिए कोई और विशेष बात जरूरत नहीं है। दुर्योधन पर है विपद घोर, सत्ता न किसी विश्व उसे छोड़, यानी आज दुर्योधन पर बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति आ पहुंची है, तो मैं उसको छोड़कर जा सकता नहीं हूं, मैं उसका साथ देने वाला हूं, उसे युद्ध मैदान में छोड़कर जाऊंगा नहीं। इसीलिए कहा रण खेत पाटना है, मुझको ही पास से काटना है, मुझे युद्ध मैदान में जाकर लड़ना है, दुर्योधन का साथ देना है। कृष्ण को स्पष्ट कर दिया कि आप मुझे, भले न मैं पांडवों का पुत्र हूं, ज्येष्ठ पुत्र हूं, पर फिर भी मैं एक सच्ची मित्रता से साथ जुड़ा हूं। दुर्योधन ने मुझे जब जब मुश्किल स्थिति आई है तब उसने साथ दिया है, तो मैं ऐसे अपने मित्र को छोड़कर जा सकता नहीं हूं। और अपनी मित्रता का भाव दर्शाते हुए कहते कि मैं इसी रणखेत में, रण युद्ध मैदान में, रणखेत यानी युद्ध मैदान, युद्ध मैदान में लड़ने वाला हूं और उस दुर्योधन को इस विपत्ति से, मुश्किलों से बाहर निकालने का प्रयत्न करूंगा। तो ऐसी एक सच्ची मित्रता जिसने अपने परिवार के सदस्यों की बात सुनने के बाद भी उसका साथ न देकर अपने मित्रता का साथ दिया, मित्रता का भाव यहाँ पर विशेष रूप से हम देख सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद है, लालच में ना आकर धन वैभव को छोड़कर वह यहीं पर, यानी एक प्रश्न अंत में मैं करता हूं कि परोपकारी व्यक्ति कैसा होता है। तो परोपकारी व्यक्ति हमेशा कभी भी धन का संग्रह नहीं करता है, और जो भी उसके पास है, जो भी धन है, वह औरों को देने के लिए उसका उपयोग करता है, वही सच्चा परोपकारी है। और ऐसे यहाँ पर इस काव्य में दो मूल्य हमें देखने को मिलते हैं, एक सच्ची मित्रता और एक परोपकारी दानी व्यक्ति का व्यक्तित्व कर्ण का हम देख सकते हैं। ऐसा एक सुंदर काव्य हमें यहाँ पर देख सकते हैं, कर्ण का जीवन दर्शन। चलो अब विद्यार्थी मित्रों, તમારે ઘેર
પાઠ્યપુસ્તકમાંથી આ કાવ્યની પંક્તિઓ પછી નીચે કેટલાક શબ્દો આપેલા છે, મેં મોટાભાગે વર્ણન કરેલા છે, એને જોઈ લેવાના અને નીચેનું સ્વાધ્યાય કાર્ય છે એ પણ સ્વાધ્યાય કાર્ય કામ કરી દે. હવે જો જે આગળના પાઠ છે એ પણ તમને સૂચિત કરી દઉં કે જે પણ તમે ચોપડો કે કંઈક થોડું ઘણું બનાવતા હોય થોડું લખતા રહેજો કે જેથી હિન્દી લખવાનું ભૂલી ન જાય. કારણ કે ઘણી વખતે બને છે કે આપણે સતત કામ ન કરીએ તો આપણે પછી ભૂલી જઈએ. બરાબર, તો થોડું થોડું લખવાનું કામ પણ કરતા રહેવા. તમને ઘણો બધો સમય મળે છે, એમાં અડધો કલાક હિન્દી વિષય માટે કાઢીને થોડું કામ કરતા રહેવા, સમયનો ઉપયોગ કરવાનો. બરોબર, તમને હવે એકાદ મિનિટ આપું છું, કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો કઈ કહી શકો. સર હિન્દીમાં હોમવર્ક શું કરવાનું? હા, હોમવર્ક ની અંદર સર તમે મ્યુટ થઈ ગયા. સર અવાજ નથી આવતો. મ્યુટ થઈ ગયા તમે. સરને ખબર પડે છે. હા તો ચોક્કસ કરાવો. સર અવાજ નહીં આવતો. હા, એક જ મિનિટ. તમને સ્વાધ્યાયમાં આપેલો પ્રશ્ન નંબર 1 અને 2, બરોબર, પછી ત્રીજા નંબરમાં ભાવાર્થ સ્પષ્ટ કીજીએ એ લખવાની જરૂર નથી. બરોબર, પછી ટિપ્પણી લખવાની જરૂર નથી. વિરોધાર્થી શબ્દો લખજો, સામાનાર્થી શબ્દો લખજો. બરોબર, આટલું લખજો. 5, 6 1, 2, 5, 6. પ્રશ્ન નંબર 1, 2, 5, 6. બરોબર, એટલું લખજો, વાંચજો અને સમજજો. બરોબર, અને આના પછી હું આને આ કાવ્યનો વિડિયો પાછો એક તમને મોકલીશ. સર, સમાનાર્થી શબ્દો લખવાના પણ વિડિયો મોકલીશ, 2 વિડિયો મોકલીશ, જોજો એટલે તમને એનો ખ્યાલ આવે. પહેલા બીજા પાઠમાંથી હા, એટલે આ ટિપ્પણીમાં આપેલા છે એમાં જે અઘરા શબ્દો છે સમાનાર્થી શબ્દના એટલા જ લખવાના, જરૂરી નથી કે બધા શબ્દો લખવા. બરોબર, તમને જે અઘરા પડતા હોય તમે જાતે ચોઈસ કરી શકો. 9માં આવ્યા છો, તમને ખબર પડે કે મને આ નથી આવડતો, આ ગ્રુપ શબ્દ છે, એને લખવાનું. બરોબર, સર કાવ્ય પાકું કરવા